All right, so this is your chapter 9, Heredity and Evolution. See, this chapter is basically based on the process of reproduction, right? So we need to go back to the process of reproduction also, maybe in between the lessons. Of course, you need to watch those videos, which we have already done, so that, just to freshen all those topics up. Okay? So this is about heredity and evolution. See, we have seen that reproductive process give rise to new individuals, and these new individuals are similar, but subtly different. So here we are talking about reproductive process. We know that basically there are two types of reproductive process, and they are asexual and sexual reproduction. Now, if we talk about asexual reproduction, let's take an example of plant, right? If you see brinjal, you won't see much of a difference, right? Maybe the size would be different, but the look, the kind of, the color and everything, they are very much similar. So we can say that in asexual reproduction, very less difference is being seen. But if we talk about sexual reproduction, okay, that are, and this sexual reproduction is happening in multicellular organisms. Let's take an example of human being, of course, because that's what we are going to discuss in this chapter. So when it comes to sexual reproduction, we see similar offspring. Offspring means kids, all right? I'm talking about human being, okay? And that's why I'm telling you kids. If there are animals, then the babies of those animals, right? So, but we will refer these terms as offspring, okay? So, in reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction में क्या होता है कि बहुत कम डिफरेंस देखे जाते हैं. उनके जो जनरेशन होती है प्लांट्स की, उनमें काफी कम डिफरेंस देखे जाते हैं. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, सो वी सी दैट दे आर सिमिलर बट देयर इज सटल डिफरेंस बिटवीन इन देम. ओके, मीन्स ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्टली अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हो, या ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई भाई है तो वो एग्जैक्टली आपके पापा जैसा दिखता है, और अगर आप हो तो आप एग्जैक्टली आपके मामा जैसे दिखते हो. इट्स नॉट लाइक दैट. You people are, kids are mixture of parents, kind of, right? So sexual reproduction में differences देखे जाते हैं, और ये जो difference है उसको हम variations कहते हैं, right? Because as the name, see, the variation term itself is a self-explanatory term, okay? So ये जो variations हैं, variations means changes, right? So we have discussed how some amount of variation is produced even during asexual reproduction. Asexual reproduction में भी variations होते हैं, but they are very less, okay? And the number of successful variations are maximized by the process of sexual reproduction. If we observe a field of sugarcane, we find very little variations among the individual plants. मतलब आप शुगर केन को देखो तो आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा उसमें, राइट? बहुत, मतलब सारे शुगर केन ही दिखते हैं हमें, ओके? बट इन अ नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स विच प्रोड्यूस सेक्सुअली, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनमें बहुत डिस्टिंक्ट वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. डिस्टिंक्ट मीन्स जिसको हम इजिली आइडेंटिफाई कर सके, राइट? And they are visible among different individuals. So this is what we are going to talk about in this chapter, all right? That ये जो difference देखने को मिलता है उसके पीछे कौन सा mechanism काम करता है, and that mechanism we are going to study, okay? तो variations के पीछे कौन सा mechanism responsible है और वो कैसे काम करता है, okay?
So we shall be studying the mechanism by which variations are created and inherited. Okay? अभी inherited का मतलब क्या होता है? See, inheritance means to have same character or appearance as your parents. सारे वर्ड को ध्यान में रखना. Inheritance का मतलब क्या होता है कि सेम कैरेक्टर होना. ओके? अभी कैरेक्टर का मतलब क्या है वो भी समझो. सी कैरेक्टर मतलब क्या कि जैसे आपका कॉम्प्लेक्शन, स्किन कॉम्प्लेक्शन, आपकी आईज का कलर, आपकी हाइट, आपकी हेयर का कलर, आपके हेयर का टाइप, ये सारी जो चीजें हैं ये कैरेक्टर्स हैं. ओके? तो ये कैरेक्टर्स में डिफरेंस देखने को मिलता है. तो जरूरी नहीं है कि आपके जो आई का कलर है वो आपकी मम्मा पे भी हो सकता है आपके पापा पे भी हो सकता है आपकी नानी जैसा भी हो. एंड इट इज पॉसिबल दैट इट कैन बी यू कैन इनहेरिट योर आई कलर फ्रॉम योर ग्रैंडमदर और पैटर्नल ग्रैंडमदर और मैटरनल ग्रैंडमदर. ओके? सो ये सारी चीजें कैरेक्टर्स हैं. सो कैरेक्टर्स क्या है? आई कलर, हाइट, हेयर कलर, ये आपका स्किन का कॉम्प्लेक्शन, ये सारे कैरेक्टर्स हैं. और इन कैरेक्टर्स में वेरिएशंस देखने को मिलता है. राइट? तो ये बात हुई हेरिडिटी की. तो ये जो पूरा जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस हैं इसको हम कहते हैं ये जो हम इनहेरिट करते हैं हमारे पेरेंट्स से, हमारे एंसेस्टर्स से, उसको हम हेरिडिटी कहेंगे. राइट? और पूरा जो ये लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस है, अभी ऐसा नहीं है ना कि देखो आपके नाना है, उनकी बेटी आपकी मम्मा, राइट? फिर आपके दादा है, उनके बेटे आपके फादर, राइट? तो उनमें कुछ वेरिएशंस आया, आपके मम्मी पापा में कुछ वेरिएशंस आया, फिर आप बॉर्न हुए, फिर आप में कुछ वेरिएशंस आया. मतलब ये बहुत लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस है. ओके? ये पूरा जो प्रोसेस है ये थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है. सो the long-term consequences of the accumulation of variations are also an interesting point to be considered, and this we are going to study under the topic of evolution. All right? So basically हम कौन सी चीजों की बात कर रहे हैं? इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या देखा? रिप्रोडक्शन होता है, दो टाइप से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल. एसेक्सुअल में let's take an example of plants. इसमें काफी से प्लांट्स की जगह हम बैक्टीरिया या कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी ले सकते हैं. ओके? सो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में काफी कम डिफरेंस देखा जाता है, मतलब उसको हम लेस वेरिएशन सीन कह सकते हैं. और बिकॉज उसमें लेस वेरिएशंस होते हैं, बहुत ही माइनर डिफरेंस देखे जाते हैं ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज. ओके? नाउ अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, उसमें भी अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें सिमिलर होते हैं, सेम नहीं होते. सिमिलर और सेम का डिफरेंट मीनिंग होता है. सिमिलर होते हैं, सेम नहीं होते. इसका मतलब सटल डिफरेंस देखने को मिलते हैं. सटल डिफरेंस मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें इधर उधर होके फिर वो पूरा चेंज हो जाता है. और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. इस वेरिएशंस के पीछे कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, कौन सा मैकेनिज्म इस वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस मैकेनिज्म को हम हेरिडिटी कहते हैं. राइट? और ये जो हेरिडिटी है उससे कौन सी चीजें एंसेस्टर्स की हमारे में आती है उसको इनहेरिटेंस कहते हैं. फिर ये जो पूरा प्रोसेस है हेरिडिटी का और वेरिएशंस का, ये काफी लंबा चलता है. मतलब हमारे एंसेस्टर्स से हम तक, तो हमारे एंसेस्टर्स तो कितने पीछे हैं, राइट? तो ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है और इसकी वजह से ये जो वेरिएशंस हैं वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं. राइट? तो ये जो पूरा लंबा प्रोसेस है उसको हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे. So this process will be studied under the topic of evolution, right? अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. क्यों? बिकॉज ऑफ द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस के भी कुछ रूल्स होते हैं, राइट?
सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं.